ہو گیا تھا. آپ کو اتنے سال میں نہیں ملا, میں بڑا اداس ہو گیا تھا. یقین مارو بہت اداس ہو گیا تھا. اور آج اتنا ہی خوش ہوں کہ آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ماشاءاللہ کیا جوش, کیا جذبہ ہے. اس جذبے کو سلام سلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ بدل گیا. نواز شریف جب یہاں پہ وزیر اعظم تھا, اور وہ وقت یاد کرو اور آج کا وقت دیکھو, کتنا فرق آ گیا ہے, کتنا فرق آ گیا ہے. اور یہاں بورے والا کے لوگ ہیں جس میں شہری بھی ہیں, کسان بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, اور بڑی تعداد میں یہاں ماشاءاللہ یہ خواتین اور بچیاں بیٹھی ہیں. اور بڑی تعداد میں یہاں پر کرسچن کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے. ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں. سلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت بدل گیا. وہ وقت یاد آتا ہے مجھے بھی اور پاکستانی قوم کو بھی, جب روٹی 4 روپے میں ملتی تھی. 4 روپے میں. نواز شریف یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ 2017 میں روٹی کتنے کی ملتی تھی؟ 4 روپے کی. اور آج کتنے کی ملتی ہے؟ یہ ہے تبدیلی, یہ ہے تبدیلی. آج 20 روپے کی روٹی ملتی ہے یا 25 کی ملتی ہے؟ 25 کی. کتنے افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے. اس تبدیلی کی وجہ سے آج روٹی 4 روپے کی بجائے 20 روپے کی ہو گئی ہے. اور مجھے بتاؤ, آج بجلی گھر میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ لوڈ شیڈنگ تو ہم نے ختم کر دی تھی اور بجلی سستی کر دی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بل 500 روپے آتا تھا مہینے کا, 500 روپے, آج وہ بل 20,000 روپے کا آتا ہے. 20,000 روپے کا. یہ ہے تبدیلی. گیس آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دیکھو بات سنو, یہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, روٹی مہنگی ہے, گھی مہنگا ہے, دالیں مہنگی ہیں, سبزیاں مہنگی ہیں. 10-10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی نواز شریف کے دور میں. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ بولو. نواز شریف کا دور یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولو. جن کو یاد آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. نیچے کرو ہاتھ. جن کو نہیں آتا وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. دیکھ لو ساجد مہدی صاحب, دیکھ لو چودھری نذیر صاحب, نواز شریف کی خدمتیں اس قوم نے یاد رکھی ہوئی ہیں. اور نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی. انشاءاللہ بجلی سستی کرے گی, اور انشاءاللہ روٹی کی قیمت جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سستا کریں گے. چینی کی قیمت سستی ہوگی انشاءاللہ, اور گیس گھر گھر ملے گی انشاءاللہ. اور میں آپ سے بالکل یہ بات سچ کہنے لگا ہوں, سچ. سنو غور سے, یہاں نوجوان بھی کھڑے ہیں. ذرا نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے ہیں نوجوان. یہ تو سارا جلسہ ہی نوجوانوں کا ہے. واہ 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 واہ. اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو, مشکل سے نکالو, یہ ملک بچا لو, یہ ملک بچا لو. جب قوم کا وقت کرایا دل میں ایک نام تیرا
मुझे बताओ, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, प्यार आपसे मोहब्बत करता हूं। मुझे नौजवानों बताओ, कितने नौजवान यहां मौजूद है जो जिनके पास रोजगार नहीं है? हाथ खड़ा करो। जिनके पास रोजगार नहीं है हाथ खड़ा करो। बड़े अफसोस की बात है कि रोजगार तक नहीं है। और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना खत्म की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ना खड़ी की जाती, खत्म की जाती, आज यहां पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। हर एक के पास रोजगार होता, हर एक के पास एक अच्छी नौकरी होती, हर एक के पास एक अच्छा कारोबार होता, हर घर खुशहाल होता, रोशनी के चिराग जल रहे होते। जो कि मुझे आपके साथ करनी चाहिए। ये है तब्दीली कि आज भी पाकिस्तान के इस बुरे वाला शहर के अंदर इतने लोग बेरोजगार हैं। आज तो पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी, बुरे वाला से बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पे कुल्हाड़ा मारा है, ज्यादती की है। देखो, ये मोटरवे बन रही थी, मोटरवे पर अब आजकल आप जब लाहौर जाते हो तो कौन से रास्ते से जाते हो? मोटरवे पे सफर करते हो या नहीं करते? बोलो। ये आपके लिए मोटरवे बनाई है, अपनी जात के लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाई है। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इंशाल्लाह एक मोटरवे यहां से बुरे वाला से भी गुजरेगी इंशाल्लाह। कितने लोग हैं, कितने किसान बैठे? जरा किसान हाथ खड़ा करें। किसान, वाह माशाअल्लाह। किसान भाइयों जरा बता दो मुझे, आज यूरिया कितने का मिलता है? यूरिया कितने का मिलता है जरा बताओ मुझे। हमारे दौर में भाई, हमारे दौर में यूरिया जो है वो 1200 रुपए का था, 1200 रुपए का। और आज 5000 का है ना यूरिया, 5000 का। ये है तब्दीली का नतीजा। और डीएपी कितने की मिलती थी हमारे दौर में? बोलो। हमारे दौर में डीएपी का जो रेट था वो 2400 रुपए था, 2400 रुपया। और आज कितने का मिलता है? 14,000, 13,000, 14,000, कभी 15,000। और पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता। हमारे दौर में 24 रुपए था। ये है तब्दीली का नतीजा। तब्दीली का सुन लिया आपने या नहीं सुना? ये और ट्रैक्टर नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर 9 लाख रुपए का था, 9 लाख रुपए का। आज कितने का है बोलो? आज 38 लाख रुपए का ट्रैक्टर मिलता है, 38 लाख रुपए का। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। ये पाकिस्तान को इन्होंने कहां पहुंचा दिया है। इंशाल्लाह आपकी मदद से फिर वापस लाएंगे पाकिस्तान को। हम महंगाई से फिर वापस लाएंगे, बेरोजगारी से फिर वापस लाएंगे और पाकिस्तान के हालात को इंशाल्लाह इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बेहतरीन रोजगार होगा। और यहाँ पर मोटरवे जैसे मैंने कहा बनाएंगे, हाईवे बनेगी, एक तरफ से हाईवे बनेगी, एक तरफ से मोटरवे बनेगी। और ऐन मुमकिन है कि इस इलाके में एक बेहतरीन एयरपोर्ट भी बना दिया जाए। और भाई, यहाँ पे मेरे दोस्त खड़े हैं,
ये साजिद मेहदी साहब खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, हमारा साथ दिया। बिल्कुल चौधरी नजीर अहमद अराइन मेरे बड़े पुराने साथी हैं, ये 1985 से मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं। तमीना दौलताना आई हुई है यहाँ पर, ये बार बार कह रही है कि एक मेडिकल कॉलेज दे दिया जाए बिहाड़ी को। अगर तमीना दौलताना साहब अगर आप कामयाब हो गई तो एक मेडिकल कॉलेज दे देंगे इंशाल्लाह आपको, लेकिन आपने कामयाब होना है, आपने कामयाब होना है इंशाल्लाह। मनेश साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई, ये भी 1985 से मेरे साथी हैं, बड़े पुराने साथी हैं। खालिद डोगर साहब मौजूद हैं, यूसुफ कसेलिया साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इरफान दौलताना साहब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आगे आओ इरफान दौलताना, इरफान दौलताना तो आगे आओ। हमारा पहलवान है इरफान दौलताना। बचा लो, मुश्किल से निकालो। ये खालिद डोगर साहब हैं जी, खालिद डोगर अभी आपसे मुखातिब थे। और ये तो मैं नाम लिया है जी, नाम लिया है, नाम कसेलिया साहब का भी नाम लिया है। अब मैं और तो बातें मैं आपसे नहीं करता। अगर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सीट जीतेगी, यहाँ पे इलेक्शन जीतेगी, हुकूमत बनाएगी, तो नवाज शरीफ इंशाल्लाह फिर पूरे वाला आएगा। और मेरा ख्याल है जैसे कि इन्होंने कहा, और आपकी बड़ी ख्वाहिश है, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी लंबी लिस्ट है कि यहाँ पूरे वाला के लिए ये काम होने चाहिए। तो भाई मैं तो एक इंशाल्लाह आपकी खुशहाली की बात करता हूँ। खुशहाली की बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करने वाला, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसके फजलो करम से हम पूरी मेहनत करेंगे, दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश पे नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह पूरे वाला को जिला भी बनाया जाए। मैं मरियम नवाज शरीफ को मैं दावत दे रहा हूं कि वो आए, बाप बेटी को दावत दे रहा है कि वो आए और आपसे बात करे। सामने अपनी बहन मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सीनियर नायब सदर और नौजवानों के दिलों की धड़कन, जिसने पाकिस्तान में अल्लाह की रहमत के बाद मुस्लिम लीग को जिंदा किया, मुस्लिम लीग के वर्करों को चार्ज किया, आपके अमंगों की तर्जमान मोहतरमा मरियम नवाज साहबा स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे मुखातब हों। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दी होनी मुस्लिम लीग दी जीत जी, ओ शेर उत्ते मोहर लावीए, अज मुल्क बचाने दा सवाल है, ओ शेर उत्ते मोहर लावीए, अज मुल्क बचाने दा सवाल है, ओ शेर उत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूरे वाला जिंदाबाद। बूरे वाला वालों, आप जानते हो आज आपकी बहन और बेटी पहली बार बूरे वाला आई है, लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस शफकत से, जिस जज्बे से आपने मेरा इस्तकबाल किया, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज पीछे हट जाएं ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बहुत मेहरबानी। मेरी बहुत सारी बहनें,
रही हैं और ये मसीही भाई मुझे नजर आ रहे हैं, इनके झंडे मुझे नजर आ रहे हैं। और जब मियां साहब ने कहा कि नौजवान हाथ उठाएं, तो तकरीबन पूरे जलसे ने हाथ उठा दिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये सब नौजवान खड़े हैं माशाल्लाह। और जितनी खुशी मुझे नौजवानों की तादाद देखकर हुई, जब नवाज शरीफ साहब ने सवाल पूछा कि हाथ उठाकर बताओ कि कितने नौजवान इस तरह के हैं जलसे में जिनके पास रोजगार नहीं है, तो तकरीबन सबका हाथ खड़ा था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरा दिल बैठ गया आपको देखकर। और आज भी खुदा गवाह है बूरे वाला वालों, आज भी अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट दो, तो नवाज शरीफ को वोट दो, तो इसलिए कह रहे हैं ताकि कल हम मुंतखब होकर आपकी खिदमत कर सकें। ये बूरे वाला से जितने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों या वो सूबाई असेंबली के हों, विहाड़ी से जितने उम्मीदवार हैं, ये सब मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट रखने वाले लोग हैं, खड़े होने वाले लोग हैं। इन सब को इतने वोट देना कि मुस्लिम लीग नून कामयाब हो, और कामयाब होकर दिन रात बूरे वाला के अवाम की खिदमत कर सके। बूरे वाला वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो है लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं, तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, दाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, बाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। और बूरे वाला वालों, ऊपर से भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे गुजर रहे होते हैं। कल मैं लाहौर में अपने हल्के NA 119 में गई, मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की वहां पर, लेकिन मेरी तकरीर के दौरान 4 मर्तबा हमारे सर के ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजरी माशाल्लाह। तो मैंने जब वो ट्रेन देखी तो मैंने लोगों को कहा कि वो देखो नवाज शरीफ का मंशूर जा रहा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। आज बूरे वाला के सामने नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। बूरे वाला पूरे का पूरा जानता है कि नवाज शरीफ ने कौम की कितनी खिदमत की है, क्योंकि जो मंसूबा उठा के देख लो, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, आजाद जम्मू कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कोई भी काबिल जिक्र मंसूबा अगर है तो उसके ऊपर किसका नाम लिखा है? अल्लाह ताला के फजल से उस पे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिखा है। सब सिर्फ मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई है। बाकी सब जमातें नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं। तो जब काम किया होता है तो तनकीद करने की जरूरत होती है। बूरे वाला वालों, मुझे कहो अभी, मुझे तो किसी पर तनकीद याद ही नहीं आएगी। मुझे तो अगर मैं सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मंसूबे और खिदमत गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम के 4 बज जाएंगे अल्लाह के फजल से। मुश्किल से निकालो। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। क्या आप लोगों को ये वाली तनकीद, ये तरक्की चाहिए आपको? और कल बड़े मजे का वाकया हुआ।
गुजरांवाला से हमारे एक उम्मीदवार है तौफीक भट्ट साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। उन्होंने कहा बाजी जरा ये वीडियो देखें। मैंने देखी, वो गाड़ी में गुजर रहे थे गुजरांवाला के किसी बाजार से, तो दुकानदार थे, लोग उनको हाथ हिला हिला के उनको वेलकम कह रहे थे। तो एक दुकानदार ने दूर से आवाज लगाई, बूरे वाला वालों, उसने आवाज लगाई, मैं वो जुमले दोहरा देती हूँ। उन्हें कहा शेर यार हुण की कर रहा, हुण आजा, बहुत तबाही हो गई साडी। अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। तो बुरे वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कौम जो है, महंगाई की मारी अवाम जो है, तकलीफों में घिरी अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। वो नवाज शरीफ को इसलिए आवाजें दे रहे हैं कि कोई आया इंतकाम लेकर चलता बना, कोई आया गाली गलोच करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना, कोई आया तनकीद करके चलता बना। लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो लोग हैं जिन्होंने आपकी हकीकी खिदमत की है अल्लाह के फजल से। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको दिन रात आपकी फिक्र है, जिसको आपकी महंगाई कम करने की फिक्र है, जिसको आपके